Hello my dear students, welcome to this session. We are continuing with chapter 10, that is about cell cycle and cell division. And today we are going to start with another type of cell division which is called meiosis. Earlier we have learned about mitosis. Mitosis occurred in somatic cells, but meiosis, it is occurring in reproductive cells which are also known as sex cells. So the production of offsprings by sexual reproduction, it will include the fusion of two gametes and each with a complete haploid set of chromosomes. You all know that the gametes, they are having haploid number of chromosomes, that is half the number of chromosome, and gametes are formed from specialized diploid cells. The specialized kind of cell division that reduces the chromosome number to half, and it will result in the production of haploid daughter cells, is meiosis. So let us start with the process. Meiosis actually involves two sequential cycles, and these cycles are of nuclear as well as cell division. That is, we can call them meiosis 1 and then followed by meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication. This you have to understand. Meiosis 1 is initiated after the parental chromosome has replicated to produce identical sister chromatids at the S phase. Then meiosis involves pairing of homologous chromosome and recombination between them. So actually meiosis 1 and meiosis 2 separately we will learn, and especially in meiosis 1 all the four subphases they will run, that is prophase 1, prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. Then after meiosis 2 will start, and it will be again following prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. So in this way the whole process of meiosis, it will go on. And also at the end of meiosis the four haploid cells are formed, and these are known as gametes. Now let us start with meiosis 1. Meiosis 1 is also known as reductional division, and it will start with prophase 1. So prophase 1 of the first meiotic division is a typically longer and very complicated process as compared to the prophase of mitosis as well as prophase 2 of meiosis also, and it is further subdivided into 5 subphases. They are leptotene, zygotene, pectine, diplotin and dikinesis. And these sequences are as such learned. ये आप सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते. सबसे पहले लेप्टोटीन ही आएगा, देन जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस. इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है. लेट अस स्टार्ट इन ईच इवेंट व्हाट हैपन्स. फर्स्ट, लेप्टोटीन. ड्यूरिंग दिस स्टेज द क्रोमोसोम बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप. क्योंकि क्रोमैटिन मटेरियल है तो धीरे धीरे वो आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाएगा, तो कंडेंसेशन थोड़ा सा शुरू हो जाएगा. द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू आउट द लेप्टोटीन. नाउ दिस स्टेज इज फॉलोड बाय सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 दैट इज नोन एज जाइगोटीन, एंड ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम विल स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज नोन एज सिनैप्सिस. ये बहुत ही टिपिकल टर्म है, आप इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना. न्यूरल सेल में भी हम सिनैप्स पढ़ते हैं, बट सिनैप्स इज़ डिफरेंट एंड सिनैप्सिस इज़ डिफरेंट. दिस इज सिनैप्सिस विच इज़ कंसर्न्ड विद सेल डिविजन. सो सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स विच आर ऑल्सो नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जो एक जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयरिंग करते हैं. इस पेयरिंग को हम बोलेंगे सिनैप्सिस. An electron micrograph of this stage indicates the chromosome synapses is accompanied by formation of complex structure
इसका हम नाम देंगे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि सिनेप्सिस किया है इन्होंने, तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे. So this complex, which is formed by pairing of synapsed homologous chromosome, is also known as bivalent. Actually ये टेट्राड होता है, बट हमको 2 क्रोमोसोम्स पास पास हैं ऐसे नज़र आएगा. But actually tetrad condition it will be more clear in next phase, that is Peckytine. And the first 2 subphases, that is Liptotine and Zygotine, it will be short lived as compared to the other stages. And next phase is subphase is Peckytine. During this, the bivalent chromosomes now clearly appear as tetrads. इसके पहले bivalents दिख रहे थे, 2 chromosomes दिख रहे थे, but actually overlapping की वजह से वो clearly नहीं दिखते हैं, actually वो tetrad condition में ही होते हैं. And this stage is characterized by appearance of recombination nodules. ये भी बहुत ही identifying है. आपने ये leguminous plants के अंदर root nodules का concept पढ़ा है, तो इसी तरह से बीडेड स्ट्रक्चर हमको क्रोमोसोम्स के ऊपर भी दिखता है, बट यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है, इसलिए हम नाम देते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स. एंड दीज साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, दिस कैन बी क्लियरली अकर. क्रॉसिंग ओवर इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टर्म हेयर, और यही इसका मियोसिस का आइडेंटिफिकेशन है, इसकी इम्पॉर्टेंस भी है, और इसको अब मैं समझाती हूँ आपको. क्रॉसिंग ओवर इज़ एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन 2 homologous chromosomes, and crossing over is also an enzyme mediated process, and here the enzyme which is involved, that is known as recombinase, क्योंकि जो प्रोसेस है उसी के ऊपर से एंजाइम का नाम दिया गया है. और ये मैं ट्राई करूँगी आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके समझाने के लिए कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स किन को बोलते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स किन को बोलते हैं. तो ये मैं एक डायग्राम से आपको बाद में समझाऊँगी. एंड क्रॉसिंग ओवर एक्चुअली लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल ऑन द 2 क्रोमोसोम्स. इसी वजह से वेरिएशंस भी आते हैं, नए नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं. एंड दीज वेरिएशंस दे आर डिफरेंट देन द पेरेंट्स. सो this is having the great importance. When we see at the end of Peckytine, recombination between homologous chromosome is completed, and here leaving the chromosome linked at only crossing over site. बाकी सारे सेपरेट हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, खाली जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर चल रहा है वहाँ पे वो जुड़े हुए रहेंगे. सो Peckytine के एंड में या डिप्लोटिंग के स्टार्टिंग में ये हम अच्छे से ये पूरा प्रोसेस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप. Now comes 4th subphase of prophase 1, that is known as diplotene, and it is recognized by dissolution of synaptonymal complex. वो ये अब कॉम्प्लेक्स टूटने लगता है या बिखरने लगता है या गायब होने लगता है. And the tendency of recombined homologous chromosomes of bivalent is to separate from each other, क्योंकि जो मेन इवेंट था वो कंप्लीट हो गया, क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गया. बट द एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स, क्योंकि एक्स शेप में जो सेंटर वाला पॉइंट है उसको हम कायस्मेटा बोलेंगे, बिकॉज यहीं पे क्रॉसिंग ओवर चलता है. क्रॉसिंग ओवर मीन्स एक्सचेंज ऑफ जीन्स, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है. एंड वन ऑफ द एग्जाम्पल इज गिवन हियर इन oocytes ऑफ सम ऑफ द वर्टिब्रेट्स. द डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स. ये एक बहुत ही स्पेशल एग्जाम्पल है. नाउ लास्ट सब फेज ऑफ प्रोफेज 1 इज डायकाइनेसिस. It is marked by terminalization of chiasmata. Chiasmata भी यहाँ पे complete हो जाता है. And during this phase the chromosomes are fully condensed. बहुत ही compact structure यहाँ पे आप देख सकते हो. And meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation. अब वही होगा, मेटाफेज 1 आएगा, और मेटाफेज हमको मालूम है कि यहाँ पे क्या प्रोसेस चलती है. सो बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स, न्यूक्लियर एनवेलप ऑल्सो ब्रेक्स डाउन, एंड डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन टू मेटाफेज. जैसे हमने माइटोसिस के प्रोफेज में पढ़ा था, जो प्रोसेस चलता है वो यहाँ पे प्रोफेज 1 के एंड में चालू होगा. न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगा, न्यूक्लियोलर एनवेलप भी डिसअपियर होगा, बट उसके पहले ये क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है
वो हो जाएगा। इसीलिए प्रोफेज 1 बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्गर प्रोसेस है, ठीक है। लास्ट में आफ्टर प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 विल स्टार्ट एंड हियर द बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स they actually align on equatorial plate. Then the microtubules from opposite poles of the spindles, they get attached to pair of homologous chromosome. So this process will occur and we will see all the events with the help of diagram also later. Now next phase will be anaphase 1. Here the homologous chromosomes, they separate and the sister chromatids remain associated at the centromeres. जो दोनों एक जैसे क्रोमोसोम्स हैं, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, वो सेपरेट होते हैं यहाँ पे, तो ये एक ध्यान में रखने वाली बात है। देन लास्ट इज टीलोफेज 1, ये मियोसिस 1 का लास्ट स्टेप है न्यूक्लियर डिवीजन में। एंड हियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस दे रीअपियर। इवन द साइटोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय टीलोफेज 1 and this is called dyad of cells, because 2 cells they are produced. Although in many cases of chromosomes they do undergo some dispersion also, they do not reach the extremely extended state of interphase nucleus, but the stage between the two meiotic division, मतलब meiosis 1 और meiosis 2 के जो बीच वाला फेज है उसको हम इंटरफेज नहीं बोलेंगे, ये आपको खास ध्यान रखना है, इसको हम बोलेंगे इंटरकाइनेसिस, ठीक है। इसलिए मैंने अलग से हाईलाइट किया है। एंड इज जनरली शॉर्ट लिव्ड, बहुत छोटा होता है। एंड नाउ इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2, क्योंकि यहाँ से मियोसिस 2 स्टार्ट होगा और ये जो मियोसिस 2 में प्रोफेज 2 है वो बहुत ही सिंपलर प्रोसेस है एज कम्पेयर टू प्रोफेज 1, तो ये भी एक वन ऑफ द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट up to meiosis 1 with the help of the diagram. So in this diagram, first of all I'll make you understand about the few keywords. यहाँ पे सबसे पहले आप सिस्टर क्रोमैटिड्स को देखिए। ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स दिखाए हैं यहाँ पे, एक लाइट कलर का है, एक डार्क कलर का है। उन दोनों को हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रक्चर वाइज लेंथ वाइज एक जैसे हैं। सो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स, हम किसी भी एक क्रोमोसोम की जो दोनों आर्म्स होती हैं उनको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बाइवेलेंट स्टेज दिखाया गया है। आपको मालूम है बाइवेलेंट स्टेज कब दिखता है, अभी मैंने आपको समझाया था। तो बाइवेलेंट स्टेज में एक्चुअली ओवरलैपिंग होती है एंड द होमोलोगस क्रोमोसोम्स दे कम नियरर टू वन अनदर, फॉर विच पर्पस? फॉर द पर्पस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। Now this phase can be understood with the help of diagram. Actually here this can be said either the end of Pectine और दी स्टार्टिंग ऑफ डिप्लोटीन, क्योंकि इस फेज़ में ही क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स ये बहुत ही क्लियरली दिखते हैं, जिसको हम सिनेप्सिस भी बोल सकते हैं। सिनेप्सिस में आपको जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर चल रहा है वहाँ पे अच्छी तरह से दिखता है वो पार्ट। एंड एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स विच आर शोइंग कायस्मेटा दी कैन बी सीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कायस्मेटा शो किया है कि कहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जीन्स हो रहा है, ठीक है। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं और उसके बीच में एक्सचेंज ऑफ जीन्स, कायस्मेटा पर्टिकुलर जो पोजीशन है वहाँ पे चल रहा है, जीन्स का आपस में एक्सचेंज चल रहा है। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ प्रोफेज 1। देन साथ साथ में स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि नाउ ऑनवर्ड्स क्या होगा, प्रोफेज 1 के एंड होते होते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगा और साथ साथ में मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 वाली प्रोसेस आगे कैरी फॉरवर्ड होगी। सो दिस पर्टिकुलर event it can be understood with the help of these diagrams. Now let us understand the overall events of meiosis 1 in the next diagram. सबसे पहले जो प्रोफेज 1 वाला सेल है उसमें आप देख सकते हो कि 2 अलग अलग तरह के क्रोमोसोम्स आपको दिखाए हैं, एक ब्लू कलर का है
और एक रेड कलर का है। बट इफ़ यू सी वेरी प्रिसाइजली, ब्लू में भी लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू आपको दिखेंगे, जिसके बीच में एक्सचेंज ऑफ जीन्स हो चुका है। और इसी तरह से रेड वाले जो पेयर है, जो लंबा पेयर है, अनदर क्रोमोसोम, उसके अंदर भी लाइट डार्क कलर आपको दिखेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ जीन्स एट सर्टन प्लेसेस इट हैव अकर्ड। और वो हमको मालूम है, एक्सचेंज ऑफ जीन्स स्टार्ट होता है पेकाइटीन, डिप्लोटीन, उसमें हम ये सारे स्टेजेस देख सकते हैं जैसे हमने इसके पहले समझा। देन मेटाफेज 1, इसमें हमने डिस्कस किया है कि मेटाफेज 1 में द बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। सारे क्रोमोसोम्स एक साथ अलाइन नहीं होंगे, बट जो सिमिलर क्रोमोसोम्स का पेयर है, आप देखो एक लाइट, ये वाला लाइट ब्लू कलर का है, ये वाला डार्क ब्लू कलर का है, ये दोनों एक साथ इक्वेटोरियल प्लेट पे साथ साथ में अलाइन हुए हैं। एंड सिमिलरली द अनदर पेयर विच इज़ इन रेड कलर विच इज़ लॉन्गर क्रोमोसोम, वो भी साथ साथ में अलाइंड हुए हैं। ताकि अब नेक्स्ट इवेंट जो है एनाफेज 1, उसमें क्या होगा, एक तरह का क्रोमोसोम नॉर्थ पोल में जाएगा और दूसरी तरह का क्रोमोसोम साउथ पोल में जाएगा ऑफ द सेम होमोलोगस पेयर। ठीक है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर है उसमें से एक वन ऑफ द क्रोमोसोम नॉर्थ पोल में जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम साउथ पोल में जाएगा। इसी तरह से ब्लू कलर के क्रोमोसोम के साथ भी होगा। सो टीलोफेज 1 में आप देख सकते हो, बाय द एंड ऑफ टीलोफेज 1 2 डॉटर सेल्स हैव प्रोड्यूस्ड, और इनके अंदर आपको एक्सचेंज ऑफ जीन्स वाले पार्ट भी दिखेंगे। ये डार्क रेड कलर का है, वहाँ पे ये लाइट कलर का पार्ट एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, इसी तरह से ये डार्क ब्लू कलर का क्रोमोसोम है और इसमें ये लाइट ब्लू कलर का पार्ट एक्सचेंज हुआ है। तो इस तरह से एक्सचेंज पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, एंड इस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं बाय द एंड ऑफ टीलोफेज 1। अब जो नेक्स्ट फेज होगा वो मियोसिस 2 होगा, एंड दैट we will be going to learn in the next session. So today we are ending our topic here only. So take care. Bye bye students.